Thank you. So we have talked about defense mechanisms, and now we will move forward to the defense mechanisms also. So these are the examples of some defense mechanisms. I want you people to give the answers. Okay. So first is, a student who is angry at her professor for a low grade lashes out at her roommate, who is a safer target of her anger. So what defense mechanism is being used here? Visible. Questions are not visible. What is not visible? Questions. Are you discussing the questions one? These are not questions. These are like statements. Can you see the slide? Okay, okay, yes, yes. I think my internet. 1 second. Can you see now? Yes, ma'am, instinct the proper propelling forces of the personality. Yes. Okay. Yes, ma'am. I don't know what is happening. One second. Is it visible now? It is visible now, ma'am. Yeah. Okay. So Yes, to ma'am. all the participants who are there, these are like 4 examples of defense mechanisms. So just try to give the answers. Ma'am, maybe this first one about student Please write in the displacement. chat. Write in the chat box. Okay, ma'am. Please write your Okay. answers in the chat box. Only a few people are able to respond. क्या हो गया है? समझ में नहीं आ रहा है. First is displacement. Yes, ma'am. Second is rationalization. Pooja Panchwani, correct. Then third is, it is not displacement, Bharti. Nida Asif, you cannot see the slide. I am sharing the screen. Yes, ma'am. Screen is visible. Please see it on speaker. Now can you see? Ma'am, yes, it is visible. Nida, sir, kindly check your internet connection. Maybe it has some problem. Okay, yes, it's visible. Okay, so first is visible. First is displacement. I can see only Pikachu. Third one is regression. Yes, true. Pooja, it is not repression, it's regression. And fourth one. Fourth one is not denial. Yes, third is regression. So fourth का आंसर बता दो कोई. Yes, fourth one is projection, correct. So done. First one is displacement. Second one is rationalization. Third is rejection. और फोर्थ वाला इज प्रोजेक्शन. इट इज प्रोजेक्शन क्योंकि यहाँ पर मैं अपना तो बता रही हूँ लेकिन सामने वाले का भी बता रही हूँ. डिनायल में मैं सिर्फ अपना बोलती कि आई डोंट हेट हिम, लेकिन यहाँ मैं सामने वाले का भी बता रही हूँ कि आई डोंट हेट हिम बट ही हेट्स मी. सो दिस इज प्रोजेक्शन. ओके,
So now let's move forward to the next slide. Then the Freud talked about some psychosexual stages of development. Since I told you कि Freud ने sexuality की बात की है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने अपनी stages को भी psychosexual stages का नाम दिया है, ठीक है? So Freud said कि personality is developed through a series of psychosexual stages, each focusing on pleasure from a different part of the body. Freud said कि हर stage में हमारी बॉडी का कोई ऐसा एक पार्ट होता है जिससे हम प्लेजर अटेन करते हैं, ठीक है? और वो जो बॉडी का पार्ट है उसको हम एरोजीनियस जोन बोलते हैं, ठीक है? सो एट ईच स्टेज a different erogenous zone or area of the body produces pleasure feelings, becomes important and can become a source of conflict also. कि हमारी एक कोई बॉडी का पार्ट होगा जहां से हम प्लेजरेबल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन वही पार्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का भी कारण बनेगा, ठीक है? तो फ्रॉइड ने कहा कि द पीपल हु आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर स्टेजेस सक्सेसफुली, मतलब एज के हिसाब से तो हम कंप्लीट कर लेते हैं स्टेजेस, बट मेंटली साइकोलॉजिकली इफ वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू द स्टेजेस स्मूथली, तो वी एक्सपीरियंस फिक्सेशन. फिक्सेशन क्या होता है? एक जगह पर अटक जाना, ठीक है? फिक्सेशन का मतलब होता है स्टक हो जाना किसी एक स्टेज में. सो कॉन्फ्लिक्ट होती है हर स्टेज में, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर नॉट फुली रिजॉल्व्ड result in fixation. So fixation is basically getting stuck to some degree in an earlier stage of development. ठीक है? कि चाइल्डहुड की किसी स्टेज में अभी तक मैं अटकी हुई हूँ, वैसा मैं अभी भी बिहेव करती हूँ, तो इट मीन्स कि मेरी फिक्सेशन हुई हुई है वहां पर. सो फ्रॉइड की ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं. we'll start with the first one, that is oral stage. So oral stage basically lasts for about 1 or 1.5 year. ठीक है? 1 से 1.5 साल तक ये स्टेज चलती है, वेरी कर सकती है फ्रॉम बर्थ. सो प्लेजर सेंटर क्या है बच्चे का? माउथ. सो द थिंग इज कि व्हेन अ बेबी बॉर्न्स, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट स्पीक. उसको क्या चाहिए? वो बोल नहीं सकता है, वो कोई एक्शन करके नहीं दिखा सकता है. द ओनली बॉडी पार्ट दैट चाइल्ड कैन मेक यूज ऑफ इज हिज और हर माउथ. ठीक है? बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा, क्राइंग विल बी फ्रॉम द माउथ. खाना दोगे तो वो मुंह से खाएगा. ही कैन नॉट मेक यूज ऑफ हिज हैंड्स टू होल्ड द थिंग्स और एनीथिंग. सो इस टाइम पे जो हमारा एरोजीनियस जोन है वो होता है माउथ. ठीक है? सो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बच्चा करता है? दैट इज सकिंग, बाइटिंग, च्यूइंग. ये सब एक्टिविटीज बच्चा जो है वो अपने माउथ की हेल्प से करता है, और इस स्टेज में उसका जो एरोजीनियस जोन है वो होता है माउथ. नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस जब बच्चे की टू मच सेटिस्फैक्शन हो या टू लिटिल सेटिस्फैक्शन हो ओरल नीड्स की. फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीडिंग. उस टाइम पे अगर बच्चे को ज्यादा टाइम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग मिले, इट मीन्स कि ओवर सेटिस्फैक्शन हो गई है. कई बार आप देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं, दे आर लाइक 4-5 years के हो गए हैं, बट स्टिल वो मदर का वो ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे हैं. सो इट मीन्स कि उनकी ओवर सेटिस्फैक्शन हो रही है ओरल नीड्स की. और कई बार आप देखेंगे कि वर्किंग मदर्स होती हैं, तो विद इन 6 months और 8 months जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग की आदत बच्चे की छुड़वा दी जाती है और उसको बॉटल दी जाती है दूध पीने के लिए. सो वहां पर क्या है? वहां पर अंडर सेटिस्फैक्शन है. सो ओवर सेटिस्फैक्शन हो या अंडर सेटिस्फैक्शन हो, ये दोनों जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है. यहाँ पर फिक्सेशन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जिस बच्चे की ओरल नीड्स ओवर फुलफिल्ड है या अंडर फुलफिल्ड है, वो उसकी जब फिक्सेशन होगी तो वो बड़ा होकर भी, एडल्ट एज में भी, वो ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा इंडल्ज रहेगा जो ओरल हो. फॉर एग्जाम्पल ओवर ईटिंग करेगा, वो चेन स्मोकिंग करेगा, नेल बाइटिंग करेगा, या फिर बहुत ज्यादा बातें करेगा. सो दीज आर द बिहेवियर्स that emerged as a result of
ओवर सेटिस्फैक्शन और अंडर सेटिस्फैक्शन ऑफ ओरल नीड्स, ठीक है। तो जो ओरल नीड्स हैं जब वो हमारी ओवर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी बनती है, टू डिपेंडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट और ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो आप, अगर आपकी ओरल नीड्स जो है वो एक्सेसिवली फुलफिल की गई हैं, अगर वो ओवर सेटिस्फाइड है तो। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी ओरल नीड्स अंडर सेटिस्फाइड है तो आप ओवरली एग्रेसिव हो जाते हो और पेसिमिस्टिक हो जाते हो, ठीक है। सो फिक्सेशन जो है ओरल स्टेज की वो इन चीजों को इस तरह की पर्सनालिटीज को लीड करती है। Then there comes anal stage. Okay, so then there is anal stage. So anal stage में क्या होता है, जो आपका erogenous zone है that is the anus, ठीक है। उस टाइम पे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है, ये ऑलमोस्ट 3 साल तक चलती है ये आपकी एनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है और कॉन्फ्लिक्ट भी टॉयलेट ट्रेनिंग में ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंसी में जब, तो यू नो कि वो बेड स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। उनको डाइपर्स वगैरह पहनाए जाते हैं तो वो बेड स्पॉइल कर रहे हैं, जहां बैठे हैं वही जगह स्पॉइल कर देंगे। सो इसीलिए टॉयलेट ट्रेनिंग उस टाइम पे उनके लिए जरूरी हो जाती है। उस टाइम जब टॉयलेट ट्रेनिंग उनको करवाई जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है कुछ बच्चों में। एक तरह के बच्चे वो होते हैं जो टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं सीखना चाहते हैं, जो रिबेल करते हैं आगे से, और पेरेंट्स जब बोलते हैं कि यूज द बाथरूम तो बच्चे उस चीज को रिफ्यूज करते हैं। एक तरह के वो बच्चे होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो अगर जगह स्पॉइल कर रहे हैं, बेड स्पॉइल कर रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलती है, घर वाले डांटते हैं या फिर जोर से बोला जाता है उनको। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि नो मैस मीन्स नो पनिशमेंट, मैं गंदगी नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। तो वो किस तरह के उनकी पर्सनालिटीज हो जाती है कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग बिल्कुल पूरी तरह रिफ्यूज कर देते हैं। वो जगह भी गंदी नहीं करेंगे और वो टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं सीखेंगे। इट मीन्स कि वो अपना जो होल्ड ऑन करना सीख लेते हैं, ठीक है, कि मतलब उसको होल्ड करके रखना, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको वो होल्ड करके रखना सीख लेते हैं। तो इस तरह की 2 तरह की पर्सनालिटीज डेवलप होती हैं। फर्स्ट इज, नाम है इनके एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी। एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी, जो बच्चे रिबेल करते हैं, जो बात नहीं मानेंगे, हु रिफ्यूज टू गो टू टॉयलेट। और वो किस तरह की उनकी पर्सनालिटीज बनती है, मेसी, डिस्ट्रक्टिव, हॉस्टाइल, ठीक है। तो हर जगह गंदगी डालनी, डिस्ट्रक्शन करनी और हॉस्टाइल रहना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, ये उनकी पर्सनालिटी होती है। और दूसरी तरह के लोग होते हैं एनल रिटेंटिव पर्सनालिटीज, जो टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं सीखते हैं और अपने फीसिस को होल्ड ऑन करते हैं, ठीक है। सो उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है, वो बहुत ज्यादा नीट होते हैं और स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं वो लोग। वो अपनी चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं जल्दी, ठीक है। तो ये है एनल स्टेज। देन कम्स द phallic stage. Sorry. Phallic stage is the third stage in Freud's psychosexual stages of development. So phallic stage में क्या होता है, 3 to 6 years की एज तक ये राउंड अबाउट चलती है। यहाँ पर जो एरोजीनियस जोन है या फिर जो प्लेजर जोन है वो जेनाइटल्स होते हैं, देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स। यहाँ क्या होता है, द चिल्ड्रन लर्न द डिफरेंस बिटवीन द जेनाइटल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। इससे पहले बच्चों को नहीं पता होता है कि देयर इज सम सेक्सुअल डिफरेंस, सम जेंडर डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, बट ड्यूरिंग दिस स्टेज जो बच्चे हैं वो ये चीज सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, चाइल्ड लर्न्स द डिफरेंस बिटवीन जेनाइटल्स एंड दे एंगेज इन सेल्फ स्टिमुलेशन ऑफ जेनाइटल्स बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी, because they want to know ki what is the difference between male and female, so they will explore their genitals because of the curiosity, self stimulation करते हैं। अब यहाँ पर
एक कंसेप्ट इमर्ज होता है जिसको बोला जाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, नाउ फ्रॉइड ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था और फिर कार्ल यूंग ने इस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का काउंटर पार्ट दिया था इन फीमेल्स, जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। सो फ्रॉइड ने बात की थी सिर्फ मेल्स की अपने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में, तो मेल्स के लिए उसने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था, बट लेटर ऑन कार्ल यूंग ने इस मेल ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का काउंटर पार्ट फॉर फीमेल्स दिया था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओके। सो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, boys develop sexual feelings for their mother, okay. So again I am making this thing clear, sexual feeling does not mean adult sexual feelings. Here the child develops feeling of love and affection towards the mother, ठीक है। बच्चा जो है, जो लड़का होता है, वो माँ के साथ ज्यादा चिपकता है, माँ की तरफ वो ज्यादा अफेक्शनेट होता है ड्यूरिंग दिस फेलिक स्टेज 3 to 6 years की एज में। And now, when the child is affectionate towards the mother, child says कि ये सिर्फ मेरी मम्मी है, ये सिर्फ मेरी है। So the child becomes jealous of his own father and develops anxiety. अब anxiety क्यों होती है? Anxiety इसीलिए होती है because the child believes कि my father is more powerful than me. और एक तरह की anxiety लड़कों में emerge होती है जिसको castration anxiety बोला जाता है। So ये अनकॉन्शियस में चलता है सब। The child, as since he is a child, he must not be aware of the feelings of love, affection और jealousy. ये सब अनकॉन्शियस में चल रहा है, बट ये बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसमें दिखता है। सो कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है fear that the penis will be cut off by the father because father is a more powerful man and mother also loves him. So ये जो फीलिंग्स हैं ये बच्चे के अनकॉन्शियस में चलती रहती हैं, बट क्या होता है कि जो आफ्टर सम टाइम ये स्टेज में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होता है? दो तरह से। जब एंजाइटी हो गई तो दो वेज हैं जिनसे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एंजाइटी के साथ डील करते हैं। पहला तरीका है कि जो बच्चा है वो जो उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स है मदर के लिए, जहां वो चाहता है कि सिर्फ मैं अपनी मम्मी के साथ होना चाहिए और कोई नहीं, वो रिप्रेस हो जाती है। सो अगेन डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन जो है वो अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है, वो यहाँ काम करता है कि जो सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर मदर है वो रिप्रेस हो जाती हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि जो चाइल्ड है वो अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है। सो आइडेंटिफिकेशन इज अनदर डिफेंस काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जहां हम क्या करते हैं, जिस इंसान से हम एंशियस फील करते हैं ना, तो हम उसकी तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, मतलब उसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो स्ट्रॉन्ग है, जो पावरफुल है, उसको हम अपना रोल मॉडल बना लेंगे, ठीक है। सो इट हैपन्स इन ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। सो जब यहाँ पर और इस तरह क्या होता है, ये दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करके जो बच्चा है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आता है। सेम इज द केस विद गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, दे डेवलप फीलिंग्स फॉर देयर फादर एंड लेटर ऑन उनकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो रिप्रेस हो जाती है एंड दे स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद देयर मदर। मम्मी की तरह दुपट्टा रखना, मम्मी की तरह खाना बनाना, दिस इज व्हाट गर्ल्स डू, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं फैलिक स्टेज में। अब क्या होता है कि जिनका तो स्मूथली ये पीरियड निकल गया, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए, उनको कोई इशू नहीं आता है, बट जो लोग यहाँ पर फिक्सेशन हो गई, जो इस कॉन्फ्लिक्ट से नहीं बाहर निकल पाए, दे पीपल डेवलप लैक ऑफ मॉरल सेक्सुअल बिहेवियर, ओके। मॉरल सेक्सुअलिटी जो है, मॉरल सेक्सुअल बिहेवियर, वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, एंड when they fail to identify with the same sex parent and when they fail to get rid of the anxiety, तो यहाँ क्या होता है, inadequate formation of super ego होता है। ये जो फेलिक स्टेज है ये आपकी वो स्टेज है जहां पर सुपर ईगो डेवलप होती है,
ठीक है। और जो लोगों की फिक्सेशन हो जाती है यहाँ पर, उनकी इनएडिक्वेट फिक्सेशन सुपर ईगो डेवलप होती है इस स्टेज में, ठीक है। सो यहाँ क्या होता है, जब फिक्सेशन हो जाए तो क्या होता है, इमेच्योर सेक्सुअल एटीट्यूड एज एन एडल्ट, ठीक है। इमेच्योर सेक्सुअल एटीट्यूड रहता है एडल्ट बनने के बाद भी। The people who are fixated in this stage have more sexual relationships with more than one partner, ठीक है। बहुत से लोगों के साथ उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं। जो मैन इस स्टेज में फिक्सेटेड होते हैं, वो उनको आप कभी कभी हम कुछ मजाक में कुछ लड़कों को बोलते हैं, यू आर मम्माज बॉय। व्हाट डज दैट मीन, कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बड़ा ही नहीं हो पाया है, वो अभी भी अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। सो दिस इज what happens when man get fixated in this stage, and when any girl or women get fixated in this stage, what she will do, she will look for much older father figure to marry, ठीक है। तो जो लड़कियां इस स्टेज में फिक्सेशन जिनको हो जाती है, वो आप देखेंगे कि उनकी लाइकिंग होती है टू सम मच ओल्डर पर्सन, मच ओल्डर पार्टनर, ठीक है, उसके लिए। सो देन these are the 3 बेसिक स्टेजेस जहां पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिक्सेशन होती है, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बट देन कम्स द लेटेंसी पीरियड, जहां पर जो आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो डोरमेंट हो जाती हैं, वो दब जाती हैं, बिकॉज यू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। वहां पर आप सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप करते हो, सोशल स्किल्स डेवलप करते हो, अपनी सेम एज के बच्चों के, सेम जेंडर के बच्चों के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स सीखते हो। सो लेटेंसी स्टेज आपकी जो है वो सोशल डेवलपमेंट है, बेसिकली सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और जो फिक्सेशन है, जिन लोगों को लेटेंसी में फिक्सेशन हो जाए, वो लोगों के लिए आगे क्या प्रॉब्लम होती है कि वो आगे दोस्त नहीं बना पाते हैं, लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं अच्छे से, ठीक है। सो देन इज लास्ट स्टेज, दैट इज जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज क्या होती है, जहां पर मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, द पर्सन लर्न्स टू बिहेव इन अ सेक्सुअली एक्सेप्टेबल वे विद पीपल ऑफ ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। यहाँ पर लेटेंसी में आप देखोगे कि जो लड़के हैं उनके दोस्त सिर्फ लड़के होते हैं, जो लड़कियां हैं उनकी दोस्त सिर्फ लड़कियां होती हैं। बट इन जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, you have friends of opposite sex and you know how to behave in a matured way with your friends. So genital जो stage है, it is the final process है in the theory of psychosexual development, और यही वो स्टेज है जहां से एडल्टहुड की शुरुआत होती है, ठीक है, एडल्ट सोशल और सेक्सुअल बिहेवियर स्टार्ट होता है। ओके, सो आई होप these stages are clear to everyone. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इन स्टेजेस में तो we'll do it afterward. So someone has right, Amrut, does it happen with girls too? Yes, I have already explained it कि लड़कियों में भी ये होता है, that is called इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओके, सो कार्ल यूंग ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया था, फ्रॉइड ने सिर्फ ऑडिपस का दिया था। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स जो है डेवलप फीलिंग्स फॉर देयर फादर एंड देन आइडेंटिफाई विद देयर मदर। तभी आपने देखा होगा कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, वो घर घर खेलती हैं, मम्मा के दुपट्टे से साड़ियां बांधती हैं। ओके, सो किचन खेलती हैं, वहां पर खाना बना के पापा को खिलाती हैं। सो दिस इज द वे हाउ दे आइडेंटिफाई विद देयर मदर। So Nida, Asif, I have few questions regarding the theory. Yes, you can ask whatever comes to your mind. Either at the end of the session, अभी थोड़ा ही रह गया है इसमें. So once we'll complete it all, then you can ask your questions. Okay, so why these names Oedipus and Electra? So the thing is कि ये ग्रीक कंसेप्ट है, ग्रीक नाम है। बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है ऑडिपस के पीछे। ऑडिपस वाज अ ग्रीक किंग who unknowingly killed his father to marry his mother, ठीक है। सो ये एक स्टोरी है, ग्रीक स्टोरी है, वहां से ये नाम आया है ऑडिपस का। और उसी तरह से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी ये एक ग्रीक माइथोलॉजी में आई गेस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट
द वर्ड इलेक्ट्रा कहाँ से आया है, बट ऑडिपस हैज कम फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी, जहां पर ऑडिपस एक राजा था, ठीक है। सो ये उसकी स्टोरी है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू पर्सनालिटी असेसमेंट। अब सी, फ्रॉइड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर दी, बता दिया कि हमें अनकॉन्शियस पे ज्यादा फोकस करना है। सो नाउ फ्रॉइड ने पर्सनालिटी को असेस करने के लिए भी कुछ चीजें बताई। फ्रॉइड ने कहा कि पर्सनालिटी वो नहीं है जो आपकी सामने दिखती है। ऑब्वियसली जब फ्रॉइड ने कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात की तो उसमें इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कॉन्शियसनेस वो है जो सामने दिख रहा है, जो अवेयरनेस में है, लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, वो तो सिर्फ 10% ऑफ योर पर्सनालिटी है। इसीलिए अगर हमें पर्सनालिटी को असेस करना है तो हमें ऐसी टेक्निक्स लानी पड़ेंगी जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को बाहर निकाले, ठीक है। सो उन टेक्निक्स को बोला जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या करती हैं, आपको एक वेग स्टिमुलस देंगी, ऐसा स्टिमुलस जिसमें कुछ क्लियर नहीं है, जिसका कोई एक जवाब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक डॉग की एक पिक्चर दिखा दूं तो इट इज क्लियर कि वो डॉग ही है। अगर वो हाँ ब्रीड किसी और का हो सकता है जो आप बोल रहे हो, शायद उससे अलग हो, लेकिन वो डॉग ही होगा, ठीक है। बट अगर मैं आपको एक क्लाउड की पिक्चर दिखा दूं और मैं बोलूं कि हाँ बताओ ये क्या चीज है, कुछ लोगों को वो क्लाउड शायद डॉग की तरह दिख रहा है, कुछ लोगों को शायद वो क्लाउड किसी ट्री की तरह दिख रहा है। तो हर इंसान की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी उस क्लाउड के लिए। तो वो जो क्लाउड है वो आपकी पर्सनालिटी डिफरेंस को दिखाएगा, ठीक है। मैंने उस क्लाउड को एक तरह से इंटरप्रेट किया और आपने उस क्लाउड को किसी और तरह से इंटरप्रेट किया। सो इट मीन्स कि हम दोनों अलग अलग, हमारा पर्सनालिटी है, हम दोनों के अनकॉन्शियस में अलग अलग चीजें चल रही हैं जो उस क्लाउड की पिक्चर ने बाहर निकलवाई। सो पर्सनालिटी फ्रॉइड की इस तरह की थी जिसमें हम अनकॉन्शियस मोटिव्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, साइकोलॉजिकल डिफेंसेस का पता लगा सकें और वो स्टिमुलस कुछ ऐसा हो जो वेग हो, जो क्लियर ना हो। इसीलिए आप उसको अपनी तरह की इंटरप्रिटेशन दोगे, और जब आप उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करोगे तो आपकी खुद की पर्सनालिटी बाहर निकलेगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, फ्रॉइड ने कहा था कि जो साइको एनालिसिस है वो एक थ्योरी भी है और वो एक थेरेपी भी है, ठीक है। अगर कोई इंसान की पर्सनालिटी को आपने डिफाइन करना है तो वो आप साइको एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हो, और अगर किसी इंसान की पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ डिसऑर्डर हो गया है, कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई है, तो उस इंसान की पर्सनालिटी को आप साइको एनालिटिक टेक्निक्स यूज करके ठीक कर सकते हो। और वो टेक्निक्स कौन सी थी? फर्स्ट वन वाज फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन फ्रॉइड की एक टेक्निक थी जिसमें फ्रॉइड ने कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपके अनकॉन्शियस माइंड को बाहर निकालने की। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, मैंने आपसे डिफेंस मैकेनिज्म्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैंने पीछे आपसे वो स्टेटमेंट्स थी, वो एग्जांपल्स थी, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। वो क्या है? वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। मैंने आपसे जितना पूछा आपने मुझे उतना जवाब दिया, शायद आप उसमें 2-4 वर्ड और ऐड कर लेते या उस डिफेंस मैकेनिज्म की एक्सप्लेनेशन डाल देते और वो क्वेश्चन वहां खत्म हो गया। लेकिन फ्री एसोसिएशन क्या है? जब मैं आपसे पूछूंगी कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप बताते चलो, मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रही हूँ, आप मुझे बताते चलो आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड थॉट जो भी आ रहा है वो आप मुझे अपने बारे में बता दो। सो दैट इज कॉल्ड फ्री एसोसिएशन टेक्निक, ठीक है। मेरे सामने एक इंसान है, मैं उससे पूछूंगी कि आपकी हॉबीज क्या है, आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं, आपको कौन सी मूवीज पसंद है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूंगी कि आप मुझे अपने बारे में कुछ भी बताओ, तो वो फ्री एसोसिएशन है फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, ओपन एंडेड है, जहां पर हम बोलेंगे से व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, नो मैटर हाउ ट्रिवियल और एम्बैरेसिंग।
वो चीज कितनी भी एम्बैरेसिंग क्यों ना हो, आप मुझे उसके बारे में बताओ, ठीक है। सो दिस इज फ्री एसोसिएशन। और फ्रॉइड ने कहा था कि जब आप फ्री एसोसिएशन का यूज करते हो तो क्या होता है कि पहले तो वो इंसान आपसे अपना अनकॉन्शियस नहीं बताएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीजें बोलना शुरू कर देता है तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में ही चाहे लेकिन उस अनकॉन्शियस को बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो हिप्नोसिस एक और टेक्निक थी। हिप्नोसिस में क्या है कि आप एक इंसान को रिलैक्स करवाओगे और एक ट्रांस की स्टेट में ले जाओगे जहां पर वो इंसान सोया भी नहीं है और जागा भी नहीं है। वो स्टेट में जब आप उस इंसान को पहुंचाओगे तो आप उसको कुछ सजेशंस दोगे, जिन सजेशंस का वो जवाब देगा आपको, और उसका जो अनकॉन्शियस है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। ओके, what is this? Premchand has written something. Is hypnosis consent matter? I'm not able to understand the question. You want to ask कि hypnosis में we need to take the consent of the person? So please, if you can elaborate your question, I might be able to answer it well. So this was all about Freud's. Then one thing I want to tell, ये फ्रॉइड मेक यूज ऑफ दिस काउच, ठीक है। फ्रॉइड जब खुद प्रैक्टिस किया करते थे तो वो इस काउच का इस्तेमाल करते थे जहां पर वो लोगों को बिठा देते थे और खुद वो पीछे की साइड बैठते थे ताकि लोग उनको देख ना सके, ठीक है। तो लोगों को ये ना लगे कि हमें कोई देख रहा है और हम नहीं बता सकते अपने मन की बात। सो ही सिट्स एट द बैक ऑफ द काउच और वहां पर वो लोगों से बोलते थे कि जो आपके दिमाग में आ रहा है आप बोलते जाओ। सो people say whatever comes to their mind, और इसी तरह लोगों का कैथारसिस हो जाता था। कैथारसिस मतलब कि जो पेंट अप फीलिंग्स होती थी उनके दिमाग में वो निकल जाती थी और उसी से उनका जो डिसऑर्डर था वो ठीक हो जाता था। Then you can make use of Rorschach ink blot test in projective techniques. उसके बाद thematic apperception test हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। So it was all about today's session. So I hope जिसने भी ये सुना उसको ये कुछ बेनिफिशियल। एंड होने वाला है, सो हमें रिजॉइन करना पड़ेगा फॉर डिस्कशन एंड द क्वेश्चन पार्ट। सो सॉरी। Okay, sure. Okay. Okay. So Premchand, I'll answer your question after rejoining. Okay. Kindly join, ये लास्ट होगा, लास्ट सेशन होगा जिसमें डिस्कशन और क्वेश्चन हो जाएंगे। Okay, ma'am. Okay. So Anjali ma'am, kindly end the meeting. Yes, assessment discussion, please join. Yes. Please rejoin with the same link. Okay.